Healing Hospital Multi-Super Specialty near Nehru Stadium, Bedar. सैयद मंसूर अहमद कादरी इंजीनियर जिला बेदर रुकन रियासती हज कमेटी को रियासती हज कमेटी का चेयरमैन बनाने को लेकर शहर के कई मुअज़्ज़िज़ीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रियासती वजीर आला सदरामिया, रियासती अक़लियती वजीर ज़मीर अहमद खान व बेदर जिला निगरान वजीर ईश्वर खंडरे और रियासती हज के वजीर रहीम खान से मुतालबा किया। अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा सर्विसेज, आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। ಇಂದಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ನಾವು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು 5ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸೈಯದ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾದ್ರಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾದ್ರಿ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ 2 ಸಲ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಆಡಳಿತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅನುಭವ ಇದೆ. ಹಾಗೂ 1999ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದು NGOವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಗೆ, ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಜ್ಗೆ ಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಅನುಸಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರನ್ನು ಮಂಜೂರಿ ತಗೋಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆ ಹಜ್ ಹೋಗುವಂಥ ಹಾಜಿಗಳಿಗೆ ಇವರು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ತರಬೇತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಹಜ್ ಯಾತ್ರಾ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವರು 26 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗ ಹಿಂದುಳಿದ ಭಾಗ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಾಗಲಿ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದು ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಭಾಳ ಮಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಇವರೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸರ್ಕಾರದವರು, ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕಂತಾರ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಆಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಕೇವಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಾದಿಂದ ಇವರಿಗೆ ವೀಸಾ ಕೊಡಿಸೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ವಿನಃ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲ ಆಗಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿನಃ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಾಗಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅನುಭವ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಾದಂಥ ಕಚೇರಿವಾಲ ಅವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಅನುಭವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದವರು, ಮತ್ತು 2 ಸಲ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಗರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ನಾಗರಿಕರ ವೇದಿಕೆ, ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜಾತ್ಯತೀತ ನಾಗರಿಕರ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಮಾರುತಿ ಬೋಧಿಯವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು
ಗಲಭೆಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು ಎಂಬ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತೀವಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಅನುಭವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸೀನಿಯರು, ಹಿರಿಯರು, ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಗೆ 26 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ನೀವು ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿನಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಹಾಗೂ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಹಜ್ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದವರು ನಮ್ಮವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ರಿ. ಜಾತ್ಯತೀತ ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದೀನಿ. सर आप ही के इलाके के 3 मिनिस्टर हैं, उनसे बात हुई इस बारे में? नहीं, अभी बात नहीं करेंगे. अब हम अभी तो एप्लीकेशन दे रहे हैं, ये देने की शुरुआत हो गया. अब हम जाकर मिलते हैं उनको, कमेटी जाके उनको मिलने का कार्य. ಸೈಯದ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾದ್ರಿ ಅವರು, ಸೈಯದ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾದ್ರಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಸದಸ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ. 11 ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರು. ಆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾದ್ರಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದ ಕಚೇರಿವಾಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೌದು, ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಾಜ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂತವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಕಚೇರಿ ಯಾವುದೇ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದ. ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗ ದುಡಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಹಿರಿತನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. उनकी नॉलेज में है कि यहाँ से एक मेंबर को बनाना हो, क्योंकि पूरे नॉर्थ कर्नाटका में सिर्फ एक ही नॉमिनेटेड मेंबर है हज कमेटी का, जो इधर से मौजूद है. तो क्या वो अपने से ये इतना सब बोलने की जरूरत है, वो खुद उसको जो है प्रपोज कर सकते हैं अपना? नहीं, हम प्रपोजल कर रहे हैं उनको. अब रहीम खान साहब को दिमाग में होगा, कोई भी मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सबको विचार मंथन करके करते. एडवांस से किसका भी नाम खुला नहीं कर सकते, क्योंकि 5 तारीख को मीटिंग रखे है. वो 5 तारीख के मीटिंग में डिसाइड होना है. इसलिए हम जो है ना रहीम खान साहब को आग्रह करते हैं कि आप हमारे जिले का सैयद मंसूर खादरी साहब जो बुजुर्ग आदमी है और एक्सपीरियंस्ड है और हज कमेटी के लिए 26 साल से काम कर रहे हैं, उसका और अनुभव है, इसलिए उनको बनाओ. ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೇನು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಭಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಈ ಭಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಹೋಗೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದ. ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಮುಖಂಡರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ. फाउंडेशन है खादरी. सर, आपका फाउंडेशन का नाम क्या है? अंजुमन खादिमुल हज्जाज. अंजुमन खादिमुल हुज्जाज. अंजुमन खादिम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं इस वक्त में हमारे शहर के अहम तरीन उलमा इकराम, दानिश्वरान और कायदीन हज़रात के दरमियान बैठा हुआ हूँ और इस मीटिंग से एक अहम पैगाम हुकूमत कर्नाटक को और ख़ास तौर पर जनाब रहीम खान साहब जो रियासती हज कमेटी के मिनिस्टर है, उनसे ये गुजारिश है, हमारी इल्तिजा है कि आप हमारे शहरियान बीदर के ख़ास तौर पर जो अरकान अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के ज़िम्मेदारान हैं, उनकी तरफ भी खुसूसी तवज्जो डालें.
और उसमें ख़ास तौर पर जनाब मंसूर अहमद अलहाज मंसूर अहमद कादरी जो सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी है अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के, एक ज़माने से बल्कि कई सालों से हुज्जाज इकराम की खिदमत और उनकी रहबरी और उनकी रहनुमाई जामे मस्जिद में मुख्तलिफ उनकी तरबियती कैंप्स और उनकी तरबियत अच्छे तरीके से करते हैं और मुख्तलिफ उलमा इकराम को बुलाकर मुख्तलिफ इलाक़ों से, शहर हैदराबाद से, गुलबर्गे से, ख़ुद बेंगलुरु से कई उलमा इकराम आकर के जो है सारे हुज्जाज इकराम की तरबियत भी करते हैं और वो प्रोग्राम सुबह से लेकर शाम तक चलता है। मक्का मुअज़्ज़मा के आदाब और उसकी ज़ियारत और किस तरीके से जो है हमको यानी हज करना है, फिर ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीना मुनव्वरा है वहाँ पर भी हम किस तरीके से जाएं और कैसे वहाँ का एहतराम करें और कैसे वहाँ पर रहे, सारे तरीक़े। कोई हाजी को कोई शिकायत का मौका भी नहीं मिलता। और ये जैसे ही हज का फार्म हुकूमत से जारी होता है फ़ौरन फ़िक्रमंद हो जाते हैं और पूरे कर्नाटक स्टेट में सबसे पहला बयान या सबसे पहले जो है प्रेस नोट अगर आती है तो मंसूर अहमद कादरी साहब की तरफ से आती है। इनकी प्रेस की वजह से पूरे कर्नाटक के अज़ला और सारे रियासत कर्नाटक के हुज्जाज इकराम मुतवज्जे हो जाते हैं और पूरी रहबरी उसकी होती है, कब क्या किया जाए, कैसे भरा जाए, कैसे कौन कौन सी तारीखों में उसका जो है तारीख फार्म भरा जाए, पैसे रकूमत वगैरह अदा की जाए, ये पूरी तवज्जो दिलाते हैं। तो अल्लाह ने बहुत सारी सलाहियतों से इन्हें सरफराज किया है और ये अकेले ही नहीं बल्कि हमारे सारे शहर के ज़िम्मेदार उलमा इकराम को लेकर और अपनी अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं हर एक को थोड़ी अपने अपने एतबार से ज़िम्मेदारियाँ तकसीम करते हैं और पूरों को अपने काम पे लगा देते हैं। और इंजेक्शन का भी जब मौका आता है हुज्जाज इकराम के जाने के सिलसिले में खुद मिनिस्टर साहब को और यहाँ के चेयरमैन को और मुख्तलिफ बड़े ज़िम्मेदारों को बुला कर के जो है अच्छा छोटा मोटा कैंप रख कर वो भी जो है बाज़ाब्ता वो आगाज़ करते हैं। यानी फार्म भरने से लेकर बीदर से लेकर हैदराबाद की तरफ तवज्जो दी जाती है, एयरपोर्ट पर उनकी खिदमत की जाती है, प्लेन में बिठाया जाता है, उनको समझाया जाता है, उनको दिलासा दिया जाता है और उनसे दुआएं जो है करने की जो है उनको गुजारिश की जाती है। और जैसे हज से फारिग होते हैं तो फिर ये बेचैन हो जाते हैं, जैसे हज के दिन ख़त्म हो जाते हैं, दिन ख़त्म होते हैं तो फिर लेने के लिए भी एक बड़ा मजमुआ इनके साथ जाता है और वहाँ उनका वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, फिर उनके जो है हालात से आगाह किया जाता है, फिर उन सबको एक मौके से बुलाया भी जाता है कि भाई तुम लोग हज करके आए हो, अब वहाँ के कुछ हालात हमें सुनाओ, क्या परेशानी हुई, कैसे कैसे तुमको जो वहाँ पर काम किया, कैसे कैसे करे, और वहाँ के हालात के बारे में पूरे हुज्जाज इकराम को बुला करके आखिरी नशिस्त जो है उनकी जब ख़त्म होती है और सब अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं कि आपने कैसे कैसे हमको रहबरी की, हमको ऐसी सहूलतें भी, बल्कि हर हाजी जो है बहुत इत्मीनान और मुतमईन होकर खुश होकर के ये सारे खद्दाम अंजुमन को दावत देते हैं, सारे अराकीन को दावत देते हैं। खुद उसमें हमारे रियासत के मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब भी उस कमेटी के नायब सदर हैं, वो भी ज़िम्मेदार हैं और अल्लाह का बहुत बड़ा करम उन पर और ये हुआ कि उसी खिदमत की वजह से अल्लाह ने उनको रियासत का हज मिनिस्टर बनाया। तो हमारी एक ख्वाहिश है जैसा उन्होंने खिदमत की उनका पूरा पूरा साथ जनाब मंसूर अहमद कादरी साहब ने भी दिया है। हमारी गुजारिश है इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए और उनका सही साथ देखते हुए कदम ब कदम शाना ब शाना जैसे ये साथ रहे, इनका जो है वो भी ख्याल करे। गर्चे के कर्नाटक रियासत में बहुत सारे लीडर्स होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे ज़िम्मेदार होंगे, लेकिन ये एक हमारे शहर का एक हीरा है। पूरी रियासत को इंशाल्लाह ये संभालेंगे और सबकी रहबरी करेंगे। मैं रियासत के कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर साहब को और हज कमेटी के ज़िम्मेदारों को और मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप दूसरा कोई फैसला करने से पहले सोचें और सोच कर के ये देखें कि हमारे हज कमेटी को फ़ायदा पहुँचाने वाला और सही उसकी रहबरी और उसकी निगरानी करने वाला कौन फ़ायदेमंद शख्स है, उसकी तरफ तवज्जो दे करके जो है आप फैसला लें। हमारी गुजारिश है हमारे शहर को कांग्रेस हुकूमत की तरफ से, जैसा कि बीजेपी ने साबिक़ा में अब्दुर्रऊफ़ साहब कचहरी वाले को बनाया था
और उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में माशाल्लाह अच्छी खिदमत की है, उनसे भी कोई शिकायतों का मौका नहीं है। लेकिन बीजेपी जैसी हुकूमत जो है मुस्लिम को मौका दे करके जो है खिदमत ले सकती है। तो हम ये गुजारिश करते हैं कांग्रेस हुकूमत से और ख़ास तौर पर हमारे सिद्धरामैया साहब से और ख़ास तौर पर हमारे रहीम खान साहब से गुजारिश है कि आप अपने इस खादिम को जो है अपने साथ रखते हुए इनको जो है रियासत की सदारत अगर सौंपी जाएगी तो पूरी रियासत का फ़ायदा होगा, हमारे ज़िले का फ़ायदा होगा और उनका नाम होगा। अल्लाह से दुआ है कि मेरी ये गुजारिश है, ये ख्वाहिश है कि ये सही वक्त पर सही फैसला लेकर के जो है रियासत यानी हज कमेटी को जो है रोशन फरमाए और उसके सही काम को जो है अंजाम दे। मैं मुफ्ती अब्दुल गफ्फार मुज़फ़्फ़रुल क़ासिमी मजलिस उलमा वल हुफ़ाज़ ज़िला बीदर ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಫೋರಮ್ದ कार्यदर्शी आज की इस मीटिंग का क्या जो है ना अपना एजेंडा है प्रेस मीट का इन्होंने बता दिया है। सॉरी मैं कन्नड़ा पे उतना ज़्यादा जो है ना कमेंट नहीं रखता हूँ, इसलिए आपसे हिंदी में बताऊंगा। बहुत ही सिंपल सा है कि 5 तारीख को कर्नाटका स्टेट हज कमेटी का एक चेयरमैन अनाउंस किया जाने वाला है। उस सिलसिले में बीदर के एक बहुत ही सिंसियर और डेडिकेटेड पर्सनैलिटी जो इस फील्ड में पिछले ऑलमोस्ट 2.5 डिकेड से 26 साल से काम करते आ रहे हैं, मंसूर अहमद कादरी साहब, उनको जो है ना अपना यहाँ का जो है ना स्टेट हज कमेटी का चेयरमैन बनाने की हम अपील करते हैं। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि आमतौर पे होता ये है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए या मिनिस्टर होता है, जनरली पॉलिटिशियंस करते ये हैं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के किसी बंदे को आगे ज्यादा बढ़ाने में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि वो खुद अकेले रहना चाहते हैं। लेकिन रहीम खान साहब से हमारी पूरी उम्मीद है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हक अदा करेंगे और यहाँ के मंसूर अहमद कादरी को स्टेट हज कमेटी का चेयरमैन अनाउंस करेंगे। और वैसे फिलहाल सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिनों से 2-3 नाम राउंड में आ रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं, जो बेंगलुरु के लोग हैं। एक जुल्फिकार अहमद टीपू का नाम सुनने में आता है जो इससे पहले भी हज कमेटी के चेयरमैन थे 2006, 7 या 8 में। और एक दूसरा सोशल मीडिया पे जो न्यूज आ रही है मुजाहिद साहब बोलकर, ये दोनों जो है ना बेंगलुरु के हैं। लेकिन अगर जितने वहां पर मेंबर्स हैं हज कमेटी में उनका अगर कंपैरिजन किया जाए, मंसूर अहमद कादरी से ज्यादा बेटर चॉइस कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि ग्राउंड पर रहकर इन्होंने कंटिन्यूअस जिस तरह से यहाँ के हाजियों की खिदमत की है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि रहीम खान साहब अपने आप को असर्ट करते हुए, अपने पावर को असर्ट करते हुए और दूसरे लीडर्स के इन्फ्लुएंस में आए बगैर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए और मिनिस्टर होने का हक अदा करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है मंसूर अहमद कादरी साहब ही डिजर्व्स इट, इनको जो है ना चेयरमैन बनाया जाए और यहाँ कल्याण कर्नाटका रीजन की आवाम को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए कांग्रेस की तरफ से। बस मंसूर अहमद कादरी साहब को अध्यक्ष बनाने के लिए जो है ना फिर एक बार मैं अपील करता हूँ। धन्यवाद। आज ये तमाम प्रेस वाले जो यहाँ आए और आज के हमारे इस खुसूसी इजलास में शरीक रहे, प्रेस मीट में हम तमाम आए हुए प्रेस मीट वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आज की जो खुसूसी इजलास हुआ अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और जो भी हमारे मुफ्ती गफ्फार साहब हमारे और सर जो भी अहबाब यहाँ जो पेश किए हैं और उस काम के लिए खुसूस तौर पर उस काम में अल्लाह ताला कामयाबी नसीब फरमाए।